Hello dear student, today we are going to study price elasticity of demand. This is the second video on theory of demand. I am sure that you must have seen all the previous videos sent to you. Please complete your unfinished homework if not done yet. Before proceeding ahead, we would like to revise demand and quantity demanded and law of demand. Demand refers to various amount of a commodity that a consumer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time, whereas quantity demanded is a specific quantity of a commodity to be purchased against a specific price of that commodity at a point of time. एक खास रेट में खास समय पर खास टाइम पर जो क्वांटिटी खरीदी जा रही है वो क्वांटिटी डिमांडेड है। और लॉ ऑफ डिमांड भी आप जानते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. It means that other things being equal, quantity demanded decreases with rise in price of the commodity and vice versa. In the light of law of demand, we able to learn that law of demand expresses the direction. But here is a question that if price increases, demand decreases, but how much? To know the answer, we have a new term known as elasticity of demand. Please pause the video and read the concept of price elasticity of demand. Price elasticity of demand is a measurement of the degree of change in demand in response to change in own price of the commodity. Come to the next point, measurement of elasticity of demand percentage change method. Here is a formula. According to this method, elasticity of demand, say for commodity X, is measured as the ratio between percentage change in quantity demanded of a commodity X and percentage change in price of the commodity X. Formula is ED is equal to, with minus sign, percentage change in quantity demanded अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है Q अपॉन P, क्वांटिटी अपॉन प्राइस. निगेटिव साइन यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा. इस निगेटिव साइन को क्यों रखा गया? इन द कॉन्टेक्स्ट of elasticity of demand, negative sign is just indicates that inverse relationship between price and quantity. It has no mathematical significance. But don't forget to put negative sign in the formula. Look at the formula here. ED is equal to negative P upon Q into delta Q upon delta P. You know it very well. ED is price elasticity of demand, Q is initial demand, P is initial price, delta Q is change in demand, Q1 is new demand, P1 is new price,
and delta P is change in price. Illustration 1. Here is a problem to explain the use of formula. Let us consider a situation like this. The initial price of ice cream is rupees 4 per cup and initial demand for ice cream is 1 cup only. If the price of ice cream falls rupees 2 per cup, demand increases to 4 cup. We have to find elasticity of demand using percentage change method. Solution. P is equal to rupees 4, P1 is equal to rupees 2, delta P यानी change in price, that is 2 minus 4 is equal to minus 2. Q1, Q is equal to 1 cup, Q1 is equal to 4 cup, delta Q is equal to Q1 minus Q, that is 4 minus 1 is equal to 3. Elasticity of demand ED is equal to minus P upon Q into delta Q upon delta P. Change in quantity upon change in price. We are substituting the values of P, Q, delta Q and delta P. We get minus 4 upon 1 into 3 upon minus 2. Solving this, we get answer is 6. This result is to be interpreted like this, that 1% fall in own price of the commodity cause 6% rise in its quantity demanded. Illustration is for you. Read the question and try to solve the problem. When price of a good is rupee 5, the consumer buy 20 units of that good. When price changes to 7, the quantity purchased changes to 12 units. Calculate the price elasticity of demand using percentage change method. Solve the same as above. ऊपर जो एग्जाम्पल अभी हमने आपको समझाया उसी की तरह इसे भी सॉल्व करिए. ये गिवन वैल्यूज़ यहाँ पे लिखना है, सेम फॉर्मूला लिखना है और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. सॉल्व करके आप बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है. वीडियो को पॉज करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें. पेन पेपर लेकर कॉपी में सॉल्व करें. आंसर बताइए कितना आया आंसर आपका. डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. We now discuss three distinct situations of elasticity of demand with reference to three distinct types of demand curve. These are as under. Situation number 1, horizontal straight line demand curve and elasticity of demand. A horizontal straight line demand curve is known as perfectly elastic demand curve. Repeat the statement. A horizontal straight line demand curve is known as a perfectly elastic demand curve. It shows that ED is equal to infinity. See the figure number 2. Here is figure number 2, perfectly elastic demand ED is equal to infinity. OX में हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं और OY में प्राइस दिखा रहे हैं. जनरली हम प्राइस को Y एक्सिस पर और क्वांटिटी को X एक्सिस पर शो करते हैं. यहाँ पर एक फिक्स प्राइस है 4 रुपीज़. तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है या बहुत स्लाइटली माइन्यूटली नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है. अ स्लाइट चेंज इन प्राइस में क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है. 10, 20, 30 एंड सो ऑन. तो इस तरह का जो प्रकार है इसे हम परफेक्टली इलास्टिक ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी की सिचुएशन बोलते हैं. इसमें हमारा जो ग्राफ है डिमांड लाइन का वो हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस होता है.
मैथमेटिकली भी इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। वी नो दैट द स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इज इक्वल टू जीरो। हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, पैरेलल लाइंस जो होती हैं, उनका स्लोप जीरो होता है। वी ऑल्सो नो दैट ई डी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी अपॉन क्यू। तो 1 अपॉन स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन जीरो इंटू पी अपॉन क्यू, जब जीरो से किसी भी नंबर को हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारा इन्फिनिटी आता है। ये मैथमेटिकल रूल्स है। अब हम आ गए सिचुएशन नंबर 2 पर। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये कैसे होगा अब हम आपको बताते हैं कि ये फिगर नंबर 3 को आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो हमारा डी लाइन है वो कैसी लाइन है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि 0 प्राइस पर भी क्वांटिटी 4 मांगी जा रही थी, 2 रुपीज़ पर भी 4 मांगी जा रही है, 4 रुपीज़ पर भी 4 मांगी जा रही है, 6 रुपीज़ पर भी 6 मांगी जा रही है। यानी ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। चेंज प्राइस के चलते क्वांटिटी डिमांडेड में नहीं हो रहा है। इसे हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस फिगर को देखकर आप समझ रहे हैं कि प्राइस तो चेंज हो रहा है, नीचे से ऊपर तक हम जा रहे हैं वाई एक्सिस में, परंतु ओ एक्स एक्सिस में हम वहीं सेम पॉइंट पर हैं, 4 पर ही हैं। तो रेट कुछ भी रहे, फॉर एग्जांपल जैसे आप नमक देखते हैं कि नमक का रेट कम या ज़्यादा हो, खपत उतनी ही रहती है। तो जो हमारे मोस्ट एसेंशियल आइटम्स होते हैं उनके प्राइस से डिमांड में वेरिएशन नहीं के बराबर आता है या नहीं आता है। ऐसे केसेस पर हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैथमेटिकली आप शो कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। वी नो दैट द वर्टिकल लाइन या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी 1/0 होता है। वी ऑल्सो नो दैट फॉर्मूला 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पर हम इसे जब सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी के स्थान पर आप 1/0 भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी के स्थान पर। तो ये हो जाएगा 1/1/0 जो इन्वर्ट हो जाएगा और आप सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा 0। अब हम सिचुएशन नंबर 3 पर आ रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप दो रेक्टेंगल देख रहे हैं फिगर में, फिगर 4 में, ओ पी टी बी, ये एक रेक्टेंगल है। दूसरा रेक्टेंगल है आपके पास ओ पी वन जे ई। दोनों रेक्टेंगल का एरिया बराबर आता है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुला। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फिगर को हम यहाँ पर समझते हैं कि इस फिगर में क्या हो रहा है। इसे देखेंगे आप ध्यान से इस फिगर को। व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, द टोटल एक्सपेंडिचर on the commodity remains constant no matter price of the commodity increase or decrease. Marshall treats this situation as unitary elasticity of demand. जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए इस चीज़ को कि अगर आपने 2 रुपये पर यूनिट के रेट से 5 यूनिट खरीदा तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 10 रुपीज़। अब इसकी प्राइस चेंज हो गई और 5 रुपीज़ प्राइस हो गई, तो आपने क्या करा? 5 रुपये के रेट से 2 वस्तुएं खरीदी, तो भी आपका एक्सपेंडिचर 10 ही रह रहा है। तो एक आप वर्टिकल रेक्टेंगल देखिए या हॉरिजेंटल रेक्टेंगल देखिए, दोनों का एरिया सेम है, यानी एक्सपेंडिचर सेम है। तो ई डी इज इक्वल टू 1 की यूनिट ED is equal to 1, area of OPTB is equal to area of OP1JE, implying that total expenditure is constant no matter what the price is. इस फिगर को ध्यान से समझ लें।
एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जितने भी फिगर आते हैं उसे सबसे पहले आप अपनी कॉपी में स्वयं ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद ही आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट इस बॉक्स में दिया है जो आपको ज़रूर समझना। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। Demand for a commodity is often categorized as elastic or inelastic. Demand for a commodity elastic if ED is greater than 1. Elasticity of demand is greater than unity, एक से बड़ी होना चाहिए, implying that percentage change in the quantity demanded is greater than the percentage change in the price of the commodity. और इसका उल्टा अगर हो जाए, ED इज लेस देन 1 हो जाए, तो इसे हम इन इलास्टिक सिचुएशन कहते हैं, जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा है। अब यहाँ पर दिए हैं कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड को जो जो फैक्टर प्रभावित करते थे, उसी तरह के सारे फैक्टर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी प्रभावित करते हैं। जैसे नेचर ऑफ कमोडिटी किस नेचर का है, जस्ट गो थ्रू दीज लाइंस। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स अगर अवेलेबल हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे हमने डिमांड में देखा था, ठीक वैसे ही है। मल्टीपल यूजेस, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, इनकम लेवल ऑफ बायर्स, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर्स, proportion of income spent on a commodity, price level। इन पॉइंट्स को आप एक बार ध्यान से आपको क्लियर हो जाएंगे। ये पॉइंट्स हम आपको ऑलरेडी डिमांड फंक्शन में बता चुके हैं पिछले लेसन में, उसी तरह से यहाँ भी हैं। वो आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, और ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिए आप। और ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इसका भी इफेक्ट डिमांड पर होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमारे पास था। इलास्टिसिटी में और भी टाइप्स होते हैं, जैसे इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए उन पर हमने चर्चा नहीं की है। आपको हमेशा की तरह एडवाइस है कि सबसे पहले बुक से इस लेसन को कम से कम 3 बार ध्यान से पढ़ें, सारे फिगर को ड्रॉ करके देखें, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पूरे लेसन को, चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर पूछें, कंसल्ट करें, राय करें और अपने डाउट्स को क्लियर करा लें। ये लेसन और ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आप इन्हें बार बार रिवाइज करिए, बुक से पढ़ना ना भूलें और होमवर्क करके मुझे शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।